DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں آڈینس نہیں تھی، جرنلسٹ نہیں تھے، مجھے کم از کم نظر نہیں آئے. وہ ایک بیان تھا اور ایک ویڈیو بیان تھا جو کہ انہوں نے پڑھ کر سنا دیا، ایک تقریر تھی جو کہ انہوں نے کر دی، اور اس کے بعد وہ تقریر ختم ہو گئی، پریس بریفنگ ختم ہو گئی. اس کا نام دیا گیا کہ یہ پریس بریفنگ ہے. ٹی وی چینلز پہ چل رہی تھیں معمول کے مطابق خبریں اور معمول کے مطابق پروگرام چل رہے تھے. اچانک وہ کٹ کیا گیا اور DGISPR بول رہے تھے. مجھے کوئی سوال جواب نظر نہیں آئے اور بہت ہی مختصر تھی بریفنگ تھی. کیا وجہ تھی اس میں؟ اور اس میں ہوا کیا ہے؟ آخر کیا وجہ بنی کہ یہ سب کچھ کرنا پڑا؟ آپ کو ذرا ان کا پہلے ذرا گفتگو سنیے، کیونکہ ہم تو پچھلے 4-5 سال سے یہی رونا رو رہے ہیں، لیکن ہمارے بادشاہ سلامت اور ہمارے طاقتور عسکری حکمران یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. ان کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہے کہ وہ اپنا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے، پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا، وہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائے، اور ان کی جو ناک ہے وہ بچ جائے، اور ان کو اپنی ناک کو اپنے انداز سے دیکھ لیں. دنیا کیسے دیکھ رہی ہے اور پاکستان کے عوام کیسے دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہے. ان کو یہی ہے کہ جو میں نے لکھا ہوا ہے، جو میں نے سوچا ہوا ہے، جو میں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، بس وہی سب کچھ ہے. اور ہم پچھلے 4-5 سال سے یہ رونا رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں کہ خدا کے لیے پاکستان کا سوچو، پاکستان کے عوام کا سوچو، پاکستان کی سلامتی کا سوچو. فرد واحد عقل کل نہیں ہے، فرد واحد کا زمانہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے آخری پیغمبر، کائنات کے آخری پیغمبر، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، اپنے فیصلے باہم مشاورت سے کرو، مشورہ لے لیا کرو، کسی کی بات سن لیا کرو. لیکن آپ کسی بھی بات کو نہیں مانتے اور آپ عقل کل بنے ہوئے ہیں. DGISPR صاحب نے آج ایک پریس بریفنگ کی اور اس میں مسئلہ کیا تھا؟ بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان کٹ رہا ہے، بلوچستان میں ہماری حکومت نہیں ہے، رٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے، رٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ناکام ہو چکے ہیں، فلاپ ہو چکے ہیں. اور اگر یہ کوئی بات کہتا ہے تو اس پہ دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، اسے غدار کہا جاتا ہے، اسے باغی کہا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. ذرا سنائیے گا جی DGISPR صاحب کو. یہ کروا رہا ہے ہندوستان، یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ، جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. اینڈ دے آر یوزنگ دی ٹیریٹریز انڈر دی کنٹرول آف دس illegitimate افغان طالبان رجیم ایز اے. تو یہ انہوں نے کہا، ذرا سنائیے گا جی باقی. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے ہیں. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ ورک شاپ پہ اٹیک کیا، 4 حملہ آور تھے، 3 اس میں افغانی تھے. The whole planning, whole equipping, everything was done from Afghanistan. یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ایک وندر میں ہو رہا ہے، ایک آپ کا جو سا ہے ببرائی میں ہو رہا ہے، منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے، اینڈ ملٹیپل لوکیشنز، یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں، انکوآرڈینیٹڈ. نو، دیر از اے اسکیم بہائنڈ اٹ، دیر از اے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ، اینڈ دیر از این انٹینٹ بہائنڈ اٹ، اینڈ دیر از اے لاجسٹکس بہائنڈ اٹ، دیر از این آپریشنل سیکوینس بہائنڈ اٹ، جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے افغان طالبان رجیم
प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब कुछ कह दिया क्या कि इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जनाब बिल्कुल कर रहा है। दुश्मन का काम है कि दुश्मन ने हमें कमज़ोर करना है, दुश्मन हम पे हमला आवर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कुलभूषण यादव को यहीं से पकड़ा गया था, बलूचिस्तान को अलग करने का मंसूबा है, ये हमें पता है दुश्मन का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दुश्मन की विकेट पर खेल रहे हैं या फिर हम कुछ अपना प्लान लेके आते हैं और दुश्मन को नाकाम बनाना है। दुश्मन को नाकाम कैसे बनाना है? दुश्मन नाकाम बनता है अवामी ताकत के ज़रिए से, गोली और बंदूक से नहीं बनता। अवामी ताकत होनी चाहिए पीछे, आइनी और कानूनी हुकूमत होनी चाहिए, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए। ये सब कुछ होगा। आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अदालतों को आज़ाद होना चाहिए। हमें पता है दुश्मन क्या चाहता है इसमें कोई शक नहीं है। कुलभूषण को पकड़ा हमने और उस वक्त क्या कहा, कितनी बड़ी कामयाबी थी आपकी, आप सब लोगों की, हम सब लोगों की, पूरी कौम की कितनी बड़ी कामयाबी थी। और जब कौम मुत्तहिद होती है तो फरवरी 2019 में दुश्मन को जवाब दिया जाता है, और जब कौम मुत्तहिद होती है तो मई में जवाब दिया जाता है भारत को। लेकिन जहाँ पे कौम मुत्तहिद नहीं होती, जहाँ पे कौम को ही, आप देखें बलूचिस्तान में आपने क्या किया है। वहाँ के हकीकी सियासी जमातें जो हैं, उन सबको आपने बाहर निकाल दिया और वहाँ पे एक डमी सियासी जमात बना के रख दी है, और उसी से पिछले 25 साल से काम लिया जा रहा है। तो ये नहीं होता, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब, क्योंकि ये मामला मैं आपको बता दूं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है बलूचिस्तान में। ये ज़रा दिखाइएगा जी कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये 24 तो मारे गए जी दहशतगर्द, 54 दहशतगर्द मारे गए इस सारी लड़ाई में। और बलूचिस्तान में पिछले 3 दिन से ये झड़पें चल रही हैं, 3 दिन से। और 42 जवान शहीद हुए, 42 जवान, 42। इतने जवान पूरी जंग में शहीद नहीं हुए। हमारे फौजी जवान, अफसरान, सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, पूरी जंग में 42 जवान शहीद नहीं हुए जितने इस लड़ाई में शहीद हो गए, इस दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हो गए। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये अलार्मिंग नंबर है, ये अलार्मिंग नंबर है कि इतने जवान कैसे शहीद हो गए। और फिर 18 जवान शहीद कर दिए गए, फिर पहले 9 का नंबर आया, फिर 18 का नंबर आया, फिर 27 का नंबर आया। आज खुद DGISPR ने बताया कि ये जवानों की तादाद जो है वो 42 से ज़्यादा थे, 42, 47 से तजावज़ कर चुकी है। और ये सरकारी नंबर है। और होता क्या है? होता ये है कि आपने मीडिया को कहना है कि खबर नहीं देनी। मीडिया को क्या खबर दे रहा है? मीडिया को किस तरफ लगाया हुआ है? मीडिया को सिर्फ एक काम पे लगाया हुआ है। और हमारी जो फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं? हमारे फील्ड मार्शल, ज़ाहिर है आप फोर्सेस के सरबराह हैं, आपका तो काम ही सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करना, पाकिस्तान का दिफा करना। तमाम फोर्सेस का काम सिर्फ यही है। फौज का क्या काम है, रेंजर्स का क्या काम है, एफसी का क्या काम है, और आपके बाकी जो फोर्सेस, उनका क्या काम है? उनका तो काम ही ये है। इंटेलिजेंस इदारों का ये क्या क्या काम है? यही काम है। लेकिन उन सबको लगाया किस पे हुआ है? उन सबको लगाया हुआ है कि जनाब आपने अज खुद एक अज्यूम कर लिया और एक सारों को आपने बागी करार दे दिया, सबको बागी करार दे दिया, मुल्क दुश्मन करार दे दिया, दहशतगर्द करार दे दिया, और उनके खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं। सियासी जमात कौन क्या होती है? सियासी जमात, रजिस्टर्ड सियासी जमात क्या होती है? अवाम से जुड़ी होती है, अवाम पे मुश्तमिल होती है। जब आप किसी भी सियासी जमात के सरबराह को, किसी भी सियासी जमात के सरबराह को सियासी ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाएंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। और वो सारी की सारी, क्योंकि जैसे जैसे आप ये कहते हैं कि चीफ को कुछ नहीं कहना चाहिए, चीफ इज़ द चीफ, चीफ इज़ द चीफ किंग कहते हैं जी, नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे मोरल डाउन होता है, आप ये कहते हैं। बिल्कुल होता है। लेकिन क्योंकि फोर्सेस आपके साथ जुड़ी हुई हैं और फोर्सेस आपके हुक्म की पाबंद हैं और वो एक इशारे की मुंतज़िर होती हैं, ये फैक्ट है। लेकिन
दूसरी जानिब सियासी जमात का जो सरबराह होता है, पॉलिटिकल लीडर, उसके साथ भी पाकिस्तान के अवाम जुड़े होते हैं। उनके साथ जो उनका ताल्लुक होता है, वो मुलाज़मत वाला नहीं होता, वो बॉस वाला नहीं होता, वो उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं, वो उसके साथ जुड़े होते हैं, वो उसके मंशूर को, उसकी सोच को आगे लेके बढ़ रहे होते हैं, वो उससे प्यार करते हैं। जब आप किसी लीडर को, किसी भी लीडर को, छोटा हो या बड़ा हो, कौमी हो या इलाकाई हो, जब आप उसको हिट करते हैं, जब आप उसको सियासी, ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाते हैं, तो वो नीचे तक, उसका ग्रास रूट लेवल तक उसकी असर जाता है। उसके बाद जी ज़रा दिखाना आप सनम जावेद को अडयाला जेल से, कोट लखपत जेल से क्या-क्या पैगाम लेके आई हैं, सुनाइए जी। लोग अगर हंसते हुए आते हैं बाहर तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। बेशक अपने घरों की खवातीन को वहाँ भेज के देखें कि वहाँ पे हम लोग किस तरह रहते हैं कि पूरी पूरी रात जब लाइट नहीं आती तो 8 व 10 की चक्की जो है वो जहन्नुम बन जाती है। 7 दिन वहाँ पानी नहीं आता, लेकिन हम शिकवा नहीं करते क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान हमसे ज्यादा तकलीफ काट रहा है, और अगर वो शिकवा नहीं करता तो हम शिकवा क्यों करें। 10 माह मुझे हो गए हैं क्योंकि एक मिनिस्टर डिस इन्फॉर्मेशन उस्मान बुखारी ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया, जिसे साबित करने के लिए वो आज से कभी अदालत के अंदर पेश नहीं हुई है, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो इस 2 लड़कियां, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इस वक्त पंजाब के अंदर आए दिन छोटी बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चे गड्ढों में गिर के मर रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह की वाकयात हो रहे हैं क्योंकि जब आपकी जो शराफिया और जो बैठे हुए हुकूमत के अंदर लोग वो मेरिट के बगैर आए होते हैं, तब यही काम होते हैं। लेकिन वो तो मरीम नवाज साहब तो कहती हैं औरतें मेरी रेड लाइन है, आप क्या बातें कर रही वो तो ये भी कहती है मैं सबकी माँ हूँ, मगर जो सलूक हमारे साथ करवा रही है जेलों के अंदर, तो आप देख लें आके वहाँ पर। भाई वाकई में इस निजाम को तेजाब से गुस्सा देने की जरूरत है कि निजाम कब खराब हो चुका है। अब बात आगे बढ़ते हैं जी। जहाज़ हमारा एक क्रैश कर गया और उसके बारे में अभी भी सस्पेक्ट है कि वो किसी ने उसको हिट किया है। ये अभी इसकी तफसीली मैं एक अलग से ख़बर तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो आपको आगाह करूँगा। और कुछ चीज़ें मैंने जमा की हैं। उनके बेटे, आज शाम को मलबा उनका मिला, उनके बेटे क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए जी। हुकूमत से गुजारिश है कि हमें कम से कम इस बात की इत्तला दी जाए कि क्या काम हो रहा है उनको ढूंढने के लिए। मेरी आर्मी चीफ से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, तमाम तरीन पॉलिटिशियन से गुजारिश है कि हमें अपडेट दी जाए कि क्या काम हो रहा है, कहाँ हैं वो, किस तरह से हमें कम से कम वो उनको ढूंढ दें, किसी भी हालत में उनको ढूंढ दें, मगर हमें बताएं तो वो हैं कहाँ, कैसे हैं, क्या काम हो रहा है, कुछ भी नहीं बताया गया। ना किसी ने राब्ता किया, ना किसी इदारे ने राब्ता किया, ना कंपनी ने राब्ता किया, कुछ भी नहीं। और उसके बाद ही अभी शाम को पता चला कि जी मलबा पाक बहरिया के जो हैं रिसर्च रेस्क्यू टीम ने कर लिया है, सर्च की है, और रेस्क्यू टीम ने उसको मलबा तलाश कर लिया है। तो अच्छी बात है। अभी उसकी तहकीकात होनी, मैं आपको बता दूंगा उस खबर के बारे में भी। नेक्स्ट रेहान तारिक साहब, और उनको भी, वो बरतानिया आए थे, वापस आए, उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पे भी मुकदमा दर्ज हो गया और पीका एक्ट उन पे भी लगा दिया गया। मुनाफरत फैला रहे हैं। ज़रा रेहान तारिक की आज पेशी थी, ज़रा दिखा दीजिएगा जी। आज उनको भी हथकड़ियाँ लगा दी गई और ये रेहान तारिक साहब के अदालत में मुनाज़र हैं, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये अजीब गद्दार हैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा। ज़रा सुनिएगा जी ज़रा। कश्मीरी भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वो भी गद्दार, वो भी दहशतगर्द, वो भी बागी। हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हम सब बागी, मैं, इमरान रियाज, डॉक्टर मोईद, वजाहत सईद, जो भी जितने भी लोग हैं, वो सब के सब, जितने पाकिस्तान में जितने जर्नलिस्ट हैं, वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है वो उसको करें जी अंदर। और हम ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं कि पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि हम गिरफ्तार होने के बाद भी ये नारा लगाते हैं, जेल में जाने के बाद भी यही नारा लगाते हैं, जला वतनी के दौरान भी यही नारा लगाते हैं, 100 साल कैद की सज़ा सुनने के बाद भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन हमारे इन अस्करी हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये और तरह के लोग हैं और वो हर रोज़ एक मुकदमा दर्ज, और पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? पूरा सिस्टम इस वक्त 1-2 खानदानों की हिफाजत के लिए लगा हुआ है, 1-2 खानदानों की हिफाजत के लिए लगा हुआ है। और उस खानदान को कैसे बचाना है, उस खानदान को प्रमोट कैसे करना है,
उस खानदान को इक़्तिदार के ऐवानों तक कैसे पहुँचाना है, उनकी तीसरी चौथी नस्ल की खिदमत कैसी करनी है, उनकी ग़ुलामी कैसे करनी है, उनकी नौकरी कैसे करनी है, उनके जूतों की पॉलिश कैसे करनी है, सिर्फ ये काम कर रहा है। और ये सब कौन कर रहा है? सबसे तगड़ा तरीन बंदा जो है, सबसे तगड़ा तरीन बंदा जो कहता है कि मैं किंग्स का भी किंग्स हूँ, वो ये काम कर रहा है। वो कहता है जनाब मेरा हुक्म है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा ये एजेंडा है, मेरा ये विजन है, इस विजन को कामयाब करें।